بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عظمت صحابہ کے متعلق قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد محدثین، اور انہی کے طریقے پر آج تک چلنے والے لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہے. وہ فیصلہ کیا ہے؟ حبہم ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان. صحابہ سے محبت رکھنا ایمان ہے، احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا، کینہ رکھنا کفر ہے، نفاق ہے اور بدماشی ہے، بغاوت ہے. اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ یہ قرون مشہود لہا بالخیر، قرون ثلاثہ، اور اس کے بعد محدثین اور اب تک کے لوگوں کا، اور اس زمانے کے قرن رابع، چوتھی صدی ہجری سے پہلے تک جتنے اہل سنت ہیں سب کا متفقہ فیصلہ ہے. رجال کی کتابیں، قواعد حدیث کی کتابیں، اصول حدیث کی کتابیں، تفسیر میں اور عقیدے کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان تمام مسائل سے. یہ سب بہت پہلے ہی مسئلے اس پر اتفاق ہو چکا ہے، اس بات سے حجت کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی ہے. بتاؤ اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے؟ آج اگر آپ کو کرنا ہے تو ان تمام مباحث سے، نزاعات سے ان لوگوں کا احسان و کرم ہے کہ نجات دے دیا ہے. ہم آنکھ بند کر کے چلو اور اپنا دوسرے کام کرو. لوٹ کر کے اس 1400 سال بعد بھی گھمانا اور اپنا ادھر ادھر اس پر بحث کرنا کیا ہے؟ لا یعنی ہے. اور پھر رہے گا مشاجرات کی بات صحابہ کے، اس میں کہا کہ سکوت تمہارے لیے سب سے نجات ہے، تمہارے ایمان کی نشانی ہے، اور فساد سے نجات ہے، فتنوں سے نجات ہے، گمراہیوں سے نجات ہے. تو ان کا احسان ماننا چاہیے کہ انہوں نے ان مسائل کو مدلل، ایک ایک دلیل، اور دلیل جتنے ہیں ان کے درمیان تطابق، اور حدیث جتنے ہیں صحیح اور جتنے ناقابل اعتبار ہیں سب کو درست کر کے چھان پھٹک کے رکھ دیا ہے. اس کے بعد بچا کیا؟ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی سورہ حشر کی آیت نمبر 10، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت جو صحابہ تھے وہ ان کی شان بتائی، اس کے بعد تابعین کی، پھر اس کے بعد اس راستے پہ جتنے بھی لوگ ہیں کیا ہے؟ سیدھا سادہ راستہ. تو کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اغفر لنا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ ہم کو معاف فرما دے. وہ اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے وہ تمام بھائی جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، اور ان کے خلاف ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ چھوڑ. جو لوگ ایمان لائے ان کے خلاف ہماری دلوں میں کینہ نہ رہنے دے. ربنا انک رؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے اور بڑا رحم فرمانے والا ہے. آیت موجود ہے. اب اس آیت کے بعد خاص طور پر صحابہ کے متعلق خاص طور پر یہ آیت موجود ہے. اس آیت کے بعد آپ بتائیے کہ کیا رہ جاتا ہے کہ ہم کوئی مسلمان کے لیے کہاں جواز ہوتا ہے کہ کینہ رکھے. اور دوسری آیت ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو بعد میں آتے ہیں وہ پہلے لوگوں کے لیے اور اس راستے پہ جو لوگ چلے ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش، اللہ کی عنایت ہے. ان آیتوں کو سامنے رکھیں، اور ایک آیت نہیں. سب سے پہلے تو منہج ہی طے ہو جاتا ہے. منہج کیا ہے؟ جو مانا علیہ و صحابی علیہ منہج ہے، قرون ثلاثہ نے یہ طے کر دیا ہے، اور بعد میں اسی کو محدثین نے بھی اپنایا ہے. تو وہ کیا ہے مسئلہ؟
मसला ये कि कुरान और सुन्नत के दलाइल जितने थे उनकी रोशनी में उन्होंने तत्बीक की ज़रूरत हो तत्बीक करके, ज़ईफ़ हदीस है उसकी तज़ीफ़ करके, तनाक़ुज़ात हैं उनको अपना में दूर करके, हर नस का मफ़हूम क्या है, और अगर बाहर बज़ाहिर कुछ नसूस आपस में टकराते हों तो उनका मौका महल क्या होगी, तफ़हीम कैसे होगी, सब कुछ समझा बुझा कर दुरुस्त कर दिया है। फिर उन्होंने आज़ार भी देखे, उन्होंने हालात भी देखा, और उन्होंने जो इंसान की सलाहियतें शकत हो सकती है, जज्बात एहसास होते हैं, तमाम चीज़ों को सामने रख कर, परख कर, जांच कर, और फिर ये कि इसके नताइज जो हो सकते हैं अच्छे बुरे, उस सबको सामने रख करके मनहज तय कर दिया है सहाबा के सिलसिले में। और उसके बाद गुंजाइश नहीं रह जाती है कि हम बात करें। कुरान करीम में बेशुमार आयतें हैं, मैं बताऊं, कुरानी आयत की रोशनी में सहाबा की अज़मत को मैंने लिखा अब तक तकरीबन 1200 सफ़हात में। सिर्फ एक ही जिल्द 300 सफ़े की, उसमें सूरह बकरा और सूरह आले इमरान में अज़मत पर जितनी आयतें आई हैं वो सब उसमें कवर करने की कोशिश की गई है। ये तने सरीह दलाइल नसूस मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है कि सहाबा के मुतालिक कोई ज़बान खोले। हराम है ज़बान खोलना। उनके जितने मसाइल हैं जो समझ में आ रहे हैं ठीक, नहीं समझ में आ रहे हैं तो खामोशी अख्तियार करना है। नसूस कैसे हैं, आयात व हदीस कैसे हैं, कितने हैं, यानी दर्जनों आयतें हैं कुरान करीम में मौजूद हैं। और फिर ये कि सरीह नसूस हैं, नसूस ऐसे हैं जिनसे इशारतन उनकी अज़मत साबित होती है, नसूस ऐसे हैं जिनके तकाज़े में दाखिल है सहाबा की अज़मत। इस तरह की नसूस मौजूद हैं, सरीह नसूस मौजूद हैं, इशारतुन नस भी है, इक़्तिज़ाउन नस भी है, सारी चीज़ें भी मौजूद हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल जैसे फुल लाइट होती है सूरज की जैसे दिन में, इस तरह की रोशनी डाल रही हैं ये आयतें सहाबा की अज़मत पर। और फिर ये कि मुख्तलिफ़ ग्रहों की हैसियत से सबसे बड़ी अज़मत मुहाजिरीन सहाबा की, उसके बाद अंसार की, फिर इनमें भी जो तक़द्दुम ताख़ुर हासिल है उसमें भी, फिर इनफरादी तौर पर हर एक के दर्जात अल्लाह के रसूल ने मुतय्यन किए हैं। फिर ये कि जो अहदास में शरीक हुए, ग़ज़व बद्र में जो शरीक हुए उस ग्रोह का अलग है। और फिर ये एक ही ग्रोह जो बद्र में शरीक है, उहद में भी शरीक है, खंदक में भी शरीक है, अहज़ाब में शरीक है, सुलह हुदैबिया में शरीक है, फ़तह मक्का में शरीक है, तबूक में शरीक है, तमाम में है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बद्र में सिर्फ शरीक हैं, जो शहादत पा गए। तो मुख्तलिफ़ ग़ज़वात में शरीक होने के अलग अलग ग्रुप के दर्जात हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनको तमाम शरीक हुए हैं, सारे दर्जात उनको हासिल हैं। और फिर उसके बाद ये हुआ कि चलो सबको दर्जात हासिल है। नसूस की रोशनी में ये अंदाज़ा होता है, तय होता है कि तकरीबन ही नहीं बल्कि वाज़ेह तौर पर ये कि तकरीबन कहाँ या वाज़ेह तौर पर कहाँ है कि ये कि नसूस की रोशनी में कि जैसे ये जिनकी फ़र्दी तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमा दिया या ग्रोह के एतबार से ज़िक्र फरमा दिया, जैसे बद्र वालों को फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने इनके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। खंदक वालों के बारे में ये क्या नाम है, ग़ज़वे सुलह हुदैबिया के सिलसिले में जगह वहाँ के बारे उनके बारे में कि माफ़ फरमा दिया अल्लाह ताला, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम फरमा दिया। तो ये बद्र में अच्छा ये कि ग़ज़वे बद्र के मुतालिक सूरह आले इमरान में, और ग़ज़वे उहद के मुतालिक ग़ज़वे उहद के मुतालिक आले इमरान में, और ग़ज़वे बद्र के मुतालिक सूरह अनफ़ाल में, ग़ज़वे तबूक के मुतालिक सूरह तौबा में, ग़ज़वे अहज़ाब के मुतालिक ग़ज़वे अहज़ाब में, और सुलह हुदैबिया के मुतालिक सूरतुल फ़तह में। तो ये मुख्तलिफ़ जो बड़े बड़े ग़ज़वात हुए हैं सबका ज़िक्र कुरान में मौजूद है। और वो पढ़ो जो सहाबा से मुतालिक गुफ्तगू है, वो बातें की हैं, अल्लाह ताला ने तफ़सीरें किए हैं, अहकाम दिए हैं, जायज़ा लिया है, उनके दिलों का हाल बयान किया है, उनकी कमज़ोरियों का ज़िक्र किया, उनकी खूबियों का ज़िक्र किया, और फिर ये कि जन्नत की बशारत दे दी, मग़फ़िरत की बशारत दे दी। सारी चीज़ें मौजूद हैं उसको। उन तमाम के होते हुए फिर किसी मुसलमान के लिए कहाँ गुंजाइश रहती है कि ज़ुबान खोले। अच्छा, एक मसला ये भी है कि वो उनसे गलती हुई, जाहिर है,
किसी ने भी अहले सुन्नत ने नहीं कहा कि वो मासूम है। मासूम तो अंबिया की जात होती है। बाद साहबा से बड़े बड़े गुनाह सादिर हो गए, जैसे जना का गुनाह सरजद हुआ और उसका गुनाह सरजद हुआ, ये क्या नाम है, चोरी का भी गुनाह सरजद हुआ, जो रिकॉर्ड में मौजूद है। लेकिन हुआ क्या, जिसने जो गुनाह किया बेताब हो गया, हद जारी करवाया, तौबा किया। अब देखिए एक साहबियाँ हैं गमिदिया, और उनके बारे में 2-3 ऐसे वाक़यात हैं जिन्होंने आकर इतराफ़ किया और हद कायम किया गया। अब गमिदिया का वाक़या मशहूर है और साहबी का वाक़या मशहूर है कि वो आए और रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसरार किया कि हमसे जना का गुनाह सरजद हो गया है, हमें पाक कर दीजिए। रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे हालात पूछे, दीवाना तो नहीं है, कहीं गलती से नशा तो नहीं कर लिया है, ओल फोल बक रहे हैं, तारी तहकीक कर ली, घर वालों को बुलाया, कहा इज़्ज़त व तकरीम से रखना। गमदिया के बारे में ख़ास तौर पर लोगों ने इज़्ज़त व तकरीम से रखा। जब हमल यानी जब बच्चा पैदा हुआ, जब रोटी खाने लगा, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा ले जा करके रज्म कर दो। फिर एक ही जब रज्म किया तो कुछ नाज़ेबा अल्फाज उनके हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बान से निकले। रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सख्त तंबीह की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ कहा तो आपने तकरीर की और फरमाया, जानते हो इस खातून ने जो तौबा की है, अगर मदीना में बसने वाले जितने लोग हैं उन पर तकसीम कर दिया जाए तो सबके अगर गुनाह हों, सब गुनाहगार अगर मान लिया हों तो सबके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब बताइए उस वक्त मदीना में कितने कौन बसते थे, कौन लोग बसते थे? सारे बड़े बड़े साहबा उस वक्त अल्लाह के रसूल के ज़माने में ज़िंदा थे। हज़रत अबू बकर थे, हज़रत उमर थे, हज़रत अली थे, हज़रत उस्मान थे और अशरे मुबशरा थे, सब लोग मौजूद थे। यानी मुहाजिरून और अंसार जिनका कुरान करीम में बार बार जिक्र है उनकी अजमत का, वो सब मौजूद हैं। कहा अगर इन सब के लिए बख्शिश का सामान होना चाहिए तो उसके इस तौबा से उनके लिए बख्शिश का सामान हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज के ज़माने में अगर उस हदीस की तशरीह की जाए तो ये हो सकता है, ये कहा जा सकता है कि भाई आज की इस सारी दुनिया में जितने मुसलमान बसते हैं, कहाँ वो साविया की अजमत और तौबा की और कहाँ ये गए गुजरे, अगर इनके सबके ऊपर फैलाया जाए तो सबके लिए काफ़ी हो जाए। तो एक अगर उनका ये वाक़या रज्म का ना रिकॉर्ड होता तो शायद कोई जानता भी नहीं, लेकिन उनकी वजह से लोग जानते हैं, इस रिकॉर्ड की वजह से उनको जानते हैं। तो ऐसे समाज माशरे में एक खातून का सिर्फ इस बुनियाद पर रिकॉर्ड में मशहूर है, रिकॉर्ड है एक गलती की वजह से, और उसकी इतनी अजमत, गलती हुई ना, तौबा की, कितनी बड़ी अजमत है। रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक दूसरी और की रवायत में है कि मदीना में जितने बसने वाले हैं, एक में 70 लोगों के लिए मग़फ़िरत हो जाएगी, एक मदीना में जितने बसने वाले हैं सबकी मग़फ़िरत हो सकती है। इतनी अजीम तौबा है, इतनी अजीम उसने तौबा की है। तो आप बताइए अगर गलती भी हुई किसी सहाबी से, तो सहाबी की तौबा की कितनी अजमत है। भी एक आम आदमी कातिल, जानी, शराबी, बदमाश, कोई भी चोरी करता है, कोई भी गुनाह करता है तो अल्लाह ताला फरमाया मनताब व आमिल सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। जो आदमी तौबा करे, अमल सालिह करे तो उसकी बुराइयों को नेकी में बदल दी जाती है। एक आम आदमी के लिए एक सहाबी होने की अजमत उसके साथ लगी हुई है और फिर उसको तौबा की तौफीक मिलती है। और उसके बारे में, सहाबी के बारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, वलम यस्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, कि जानते बूझते गुनाह करके उस गुनाह पर इसरार कर ही नहीं सकते हैं। उनकी सीरत बयान की अल्लाह ताला ने, कहा फौरन तौबा करते हैं। बेशुमार आए तो मौजूद है। तो सवाल ये है कि एक तो उनकी अजमत है, उनके कारनामे हैं, इतने कारनामे हैं और रसूल साहबी के हिस्से से कि बाद में कोई कितना कारनामा कर डाले किसी अदना साहबी की अजमत को नहीं पहुँच सकता है। तो वो अजमत अपनी जगह है। दूसरे की इस्तिग़फ़ार और तौबा की उनके अल्लाह ताला ने खूबियाँ बयान की हैं कि वो कभी तौबा अपनी गलती पर इसरार नहीं कर सकते हैं। अगर उनसे बड़े से बड़े गुनाह हो गए हैं तो कुरान के रिकॉर्ड के हिसाब से वो इसरार नहीं कर सकते हैं। तौबा की, माफ़ी हो गई, तो आपको क्या पेट में दर्द हो रहा है? आज क्यों लिए बैठे हुए हो जब अल्लाह ताला से, अर्श इलाही से उनके लिए पैगाम आ रहा है और उनकी बात की जा रही है, बोले मिस्रु अला मफ़ालू वहुम यअलमून, कि जानते बूझते किसी गलती पर छोटी हो या बड़ी हो इसरार कर ही नहीं सकते हैं और फ़ौरन तौबा करेंगे। तौवाबून उनकी बारे में जिक्र आया है कि वो तौबा करने वाले हैं।
तौबा करते रहते हैं। तो बेशुमार जो कुरान करीम में अगर तमाम आयतों का हिस्सा किया जाए तो सहाबा के सिलसिले में ख़ास तौर पर कुरान करीम में जो उनकी बारे में, उनके अखलाक के बारे में जिक्र किया है, कोई फहरिस्त बनाई जाए तो 60-70 चीज़ें बनती हैं। उनकी खूबियों के बारे में जिक्र किया गया है। इतनी खूबियाँ, इतने कमालात। अब अल्लाह ताला के रिकॉर्ड में तो ये है कि इसरार नहीं कर सकते हैं, और वो अपनी अगर गलती हो गई तो फ़ौरन उसको माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश करते हैं। वो बैठ ही नहीं सकते हैं, उनको चैन ही नहीं आ सकता है जब तक माफ़ी तलाफ़ी ना हो जाए। कितने बड़े से बड़े अगर गुनाह हो गए हैं तो उन गुनाहों की उन्होंने तौबा कर ली है, और अल्लाह ताला ने रिकॉर्ड किया, कुरान करीम में रिकॉर्ड किया, तौबा करने वाले हैं। फिर आप क्यों लिए गलतियों को ढो रहे हैं? आपको यानी कुरान करीम ने जो कहा है उनके बारे में, और आप जो मौक़िफ़ बनाए हुए हैं, तज़ादी लड़ाई नहीं है, तज़ादी की नहीं है। तो आप कुरानी मौक़िफ़ से सहाबा के बारे में क्यों हट रहे हो? तीसरी बात ये कि गलतियाँ होती हैं इत्तेहादी भी होती हैं। सहाबा की जितनी गलतियाँ जो मुशाजरात हुए हैं, जैसे हज़रत अली और हज़रत मुआविया के मुशाजरात, सवाल ये है कि उसमें कितने सहाबा थे? हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु के रहमुल्लाह के कहने के मुताबिक उसमें 4-5 सहाबा इन्वॉल्व रहे। तो सवाल ये है कि उन मुशाजरात में क्यों आप पढ़ रहे हैं? इन मुशाजरात में पढ़ने की ज़रूरत क्या है आपको? इत्तेहादी गलती हर आदमी चाहता था। इत्तेहाद क्या होता है? इत्तेहाद अगर गलती, अगर इंसान की नीयत सही है, हक चाहता है, हक के लिए लड़ता है, और अगर वो गलती कर जाता है, तो दीन का उसूल ये है कि अगर कोई इत्तेहाद करता है, मन इत्तहदा फ़असाब फलहु अजरान और मन इत्तहदा फ़अख्ता फलहु अजरुन वाहिद, कि अगर आदमी हक की खातिर, दीन के फ़रोग़ के लिए, हक की पासदारी के लिए इत्तेहाद करता है और गलती करता है, हो जाती है, तब भी उसको सवाब मिलेगा। और अगर दीन की खातिर, दीन के मफाद में इत्तेहाद करता है और वो पा जाता है हल, है जो परेशानी है जिसका हल पा जाता है, और सच्चाई, अच्छाई, खैर उसको मिल जाती है, तो उसको 2 अजर है। तो सवाल ये है कि अगर तमाम सहाबा का जो मिजाज था, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी, जो सहाबियत का तकाज़ा था, क्या उनके बारे में ये कहना बेहतर है कि इत्तेहादी गलती हुई, या कि उनको मुजरिम बनाना बेहतर है? क्या तकाज़ा है? दीन का क्या तकाज़ा है? नुसूस का क्या तकाज़ा है? तो इन तकाज़ों को भी देख लेना चाहिए, इन तकाज़ों को पूरा कर लेना चाहिए। फिर ये कि सहाबियत, चौथी बात, सहाबी होना ये कोई इक्तिसाबी नहीं है। सहाबी वहाबी है, ये अल्लाह ताला का करम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बनना, और अल्लाह ताला ने जिनको चुन लिया सहाबी बनने के लिए, ये क्या इक्तिसाब से ज़्यादा ये वहाबी है? भाई हम आप अगर बैठ के तमन्ना करें कि काश उस ज़माने में हम होते, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, तो सवाल ये है उस ज़माने में होने के लिए, कठिनाइयों को बर्दाश्त करने के लिए क्या गारंटी कि हम उस अब्दुल्लाह बिन उबई के ग्रुप में जाते? तो अल्लाह ताला ने उस ज़माने में जो अजीम जिम्मेदारियां थीं, और जो तक़द्दुस का माहौल था, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत थी, और जो आपकी सियादत थी अंबिया में, इसकी हैसियत से जो लोग मुनासिब थे उनको अल्लाह ताला ने तय किया, चुना है। तो जिन सहाबा को अल्लाह ताला ने चुना है, उस सहाबियत का जो मर्तबा हासिल हुआ है, वो सहाबियत का मर्तबा इतना ऊँचा है कि आज के ज़माने में कोई, सारी दुनिया के मुसलमान मिल करके अगर पहुँचना चाहें तो एक सहाबी के दर्जे को नहीं पहुँच सकते हैं। तो जो इतनी उनका मकाम, इतना बड़ा दर्जा है, तो आप उनकी रिफ़ात को, उनकी बड़कपन को, उनके हालात को, उनको तार-तार करना चाहते हैं। यह है कि आप उस मुक़द्दस नूरानी माहौल को छोड़, उतार करके आज के ज़माने में, फसादी ज़माने में ला करके उनके बारे में फ़ैसला करना चाहते हैं। ये तो सूरत हाल बनी। आज जितने हैं उनके बारे में जो बात करें, जो अहले सुन्नत में हैं, तो क्या सूरत हाल है? वो ये कि सहाबी होने के दर्जे को जानते नहीं हैं, उसके तक़द्दुस को जानते नहीं हैं। वो जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का, और आपकी ज़ात के तक़द्दुस का, और आपके साथ काम करने के लिए जो अजीम किरदार होना चाहिए, आप उसका सही एहसास और तसव्वुर नहीं रखते हैं, शऊर ही नहीं है इस चीज़ का। तो उस दौर के हालात को आज के हालात पर लाना, तो एक बड़ी परेशानी ये है। 5वीं बात यह है
कि आज जो इस तरह की लोगों के दिलो दिमाग में फूल खिलते हैं ना, इस तरह के शगुफ़ाबाजियाँ होती हैं, वो क्यों होती हैं? कई वजह होती हैं। आज के ज़माना ये नुमाइश का ज़माना है। कुछ लोगों को यह है कि ये जमहूरियत का बुलबुला दिलो दिमाग में उठता है ना, और सेकुलरिज्म का, तो सेकुलरिज्म क्या है, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ, सेकुलरिज्म जमहूरियत यही है कि भाई चोर साहब आप भी सही हैं, ताजुद्दीदार साहब आप भी सही हैं, डाकू साहब आप भी सही हैं, ईमानदार साहब आप भी सही हैं, अल्लाह को गाली देने वाले आप भी सही हैं, अल्लाह ताला के लिए सर सजदे में डालने वाले आप भी सही हैं, ये है। तो अब इस माहौल में जो जहन बन गया है ना, सहाबा को इसी माहौल में उतारते हैं। कितने बेचारे बदबख्त हैं और कितने बदनसीब हैं जो उन मुक़द्दस हस्तियों के आज ये कुफ्र और ज़लालत के घटाटोप अंधेरे में पड़े हुए और बर्बाद होने वाले लोगों के माहौल में ऐसे लोग लाने की कोशिश करते हैं। तो ये जमहूरियत का ये कलाबाजियाँ हैं दिलो दिमाग में कि आदमी साहबा को भी इसी सतह पर उतारने की कोशिश करता है, नुसूस को इसी सतह पर उतारने की कोशिश करता है, सियासी अमल को उसी सतह पर उतारने की कोशिश करता है। नतीजा ये है कि वो उसकी निगाह में उनका मकाम जरा ही नहीं जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपना गुरूर नसब की बात होती है कि हम भी सैयद हैं, तो वो सैयद बन करके ये अपोजिशन अख्तियार करते हैं। वैसा लगता है जैसे आले अली को बैठाए हुए किसी स्टेज पर और किसी टेंट में और हजरत मौलवी का मुकाबला कर रहे हैं। अपोजिशन की गुंजाइश है ही नहीं यहाँ। हजरत मुआविया भी अपने, हजरत अली भी अपने, हजरत हसन भी अपने, जितने साहबा सब अपने हैं। अब वो आपकी औकात क्या है, मजाल क्या है कि उनके बारे में आप बैठ करके अपोजिशन का रवैया अख्तियार करें और गाली दें, बदमाशी करें, तुग़यान और जितने क्या नाम है शेरी वजन बिठाएं, तुग़यान और सौरान फलां फलां, सब क्या चीज़ें हैं? ये शैतानत है। वो हराम है कि ये जहन बनाएं कि अपोजिशन का रोल अख्तियार करने की कोशिश करें, और ये कि हज़रत मुआविया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में उनके जो थे उन्होंने तौबा की, इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह ताला के यहाँ गए। हम क्यों आज के ज़माने में बैठकर अपोजिशन अख्तियार करें और बैठ कर के फैसला करें कि वो उनका कैंप है, इनका कैंप है। आज के जमहूरियत ज़माने के हिसाब से कैंप बना कर बैठते हैं और बकवास करते हैं और कुछ लौंडों को, कमकलों को लेकर के लच्छेदार बातें कर रहे हैं। क्या है? नहूसत और शकावत के सब कुछ है? नहूसत और शकावत के सब कुछ नहीं है। एक सातवीं चीज़ ये है कि नुसूस, जो कुरान और सुन्नत के नुसूस हैं और जो रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही ढंग के उन नुसूस के मानी फिट करना ज़रूरी होता है। आपस में टकराव दिखा करके अपोजिशन का रोल अदा करने वाली बात करना, ये कहाँ की बातें हैं? एक अहम मसला ये भी होता है कि भाई हालात होते हैं, आज़ार होते हैं, सलाहियतें होती हैं। अब बताइए, कुरान करीम और हदीस की रोशनी में और हदीस की सूरत में पूरा दिन हमारे सामने मौजूद है कि नहीं है? कहे नहीं सारी दुनिया में अपने ही घर पे इस्लाम नाफिज कर लो, कर पाएगा कोई है? या बड़े बड़े मौलवी अपने ऊपर नाफिज करें इस्लाम? ऐसे लोगों में बात करते हैं जिनसे अगर पूछा जाए कि सदकात खैरात का चंदा लेके आओ, हिसाब दो। अभी तो हिसाब देना पसीना आएगा, बल्कि ये डंडे पड़े तभी हिसाब नहीं दे पाएंगे। और बातें करते हैं ऐसी, तो क्यों, कहाँ गई सलाहियत दिन पर अमल करने की? रहने सहने, खाने पीने, कमाने धमाने में सारी अपने मनमानी कर रहे हैं। फिर अखलाक व किरदार देख लीजिए, उसमें ज़बान से क्या निकल रहा है, क्या उगल रहे हैं, दिलों में क्या खूब से बातिन भरा हुआ है, गुरूर व घमंड की सवारी बने हुए हैं। मकर फरेब हर फिक्र ख्याल के साथ उमड़ता फिरता है। ये कर लें, इस्लाम नाफिज कर लें ना, किसी मदरसे में नाफिज करके दिखा दें। तो हालात होते हैं, हालात थे हज़रत अली के और हालात थे, हज़रत मुआविया के और हालात थे, और उस हालात में फिर ये कि जंग हुई, वो सूरत हाल और बनी, फिर वो सहाबी थे, वो हालात हैं, फिर और दूसरे मसाइल हैं, फिर ये भी। अब उनको उस सूरत हाल को, सिचुएशन को ला करके आज फिट करें और आज के ज़माने के हिसाब से देखने की कोशिश करें, तो ऐसा आदमी कितना बड़ा जालिम होगा। इन तमाम चीज़ों को सामने रखो। अपोजिशन क्यों बनाते हो साहबा? फिर ये कि साहबा को अपोजिशन के हिसाब से नहीं देखना है। साहबा को रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा दिए तमाम साहबा के बारे में, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म मिन बादी
فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. فرمایا کہ میرے بعد کسی صحابی کو نشان تان و تشنی مت بنانا. صحیح حدیث ہے، حکم ہے. یہ جو منہ کھولتے ہیں اپنی، جو زندگی بھر حرام نگلتے رہے اور حرام اگل رہے ہیں اور نہ جانے کتنے کروڑ لا کر اپنی جائیداد بنائے ہوئے ہیں. حضرت معاویہ پر تو بڑا چیخ پکار مچ رہی ہے کہ وہ حکومت قبضہ کر لیا اور تم بھیک مانگ کر لائے صدقات و خیرات قومی امانت کے حصے سے. تم تو حساب دے دو، پہلے حساب دے دو حضرت، اس کے بعد حضرت معاویہ پر زبانی تانتارت کرنا. محلات بنا رہے ہیں، گاڑیاں چندے ہیں، جتھے ہیں اور ہوائی جہاز سفر ہو رہے ہیں، شاندار گاڑیاں ہیں، بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، ادارے کھلے ہوئے ہیں، نام ہے، شہرت ہے، رات دن اسی میں لگے ہوئے ہیں. زندگی مکمل 24 گھنٹہ میں سے حرام میں گزر رہی ہے، حرام میں گزر رہی ہے، حرام میں گزر رہی ہے. اور یہ کہ دوسروں سے مانگے ہوئے، جو کہا ہے نا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. اس میں سے ایک ہے عائل المستکبر، ایسا متکبر جو فقیر ہے، اپنا کچھ نہیں پھر بھی غرور ہے. یہ بھیک مانگنے والے، چندہ کرنے والے لا کر کے کوٹھیاں بناتے ہیں اور اس کے بعد غرور اتنا کہ حضرت معاویہ پر زبان تان تراز کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا نام ہے حکومت قبضہ کر لیا حضرت علی کا. اور تم نے کیا کیا؟ یہ امانتیں لا کر کے کھا رہے ہو، اپنے باپ کی جائیداد بنا رکھا ہے. تمہاری اوقات ہے بات کرو ان پر. بات ہوتی ہے تو یہ عالم ہے نہ چھیڑو. ارے عالم ہے تو زبان سے کیا کون سا عالم ہے اور اس کی جو باتیں ہیں اس کا کیا اعتبار ہے؟ ظاہر ہے اپنی جب سیرت و کردار اپنی سچائی کا ثبوت دے گا تو اس کی بات کا وزن ہوگا. لیکن جب اپنے سیرت و کردار کی سچائی کا اور اچھائی کا ثبوت نہیں دے سکتا، اس کی بات کا کیا وزن ہے؟ جو آدمی جھوٹا ہے اس کی بات کا کوئی اعتبار ہو سکتا ہے؟ جو آدمی حرام خور ہے اس کی بات کا کوئی اعتبار ہو سکتا ہے؟ جو آدمی چندہ خور، چندہ بٹور ہے تو اس کی بات کو کوئی اعتبار ہو سکتا ہے؟ جو آدمی مغرور ہے، گھمنڈی ہے اور وہ صحابہ پر تان دراز کرے، زبان تان دراز کرے، اس کی بات کا اعتبار ہو سکتا ہے؟ تو پہلے اس کو بھی دیکھنا چاہیے نا. جو بھکاری لوگ، باپ کی جائیداد کچھ نہیں، کھانے پینے کو اٹھتا نہیں، بھیک مانگ کر لائیں اور عیاشی کر رہے ہیں، اس کے باوجود حساب چندے نہیں دے سکتے ہیں 40 سال کا، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تان دراز کرتے ہیں. تو یہاں یہ کہا گیا صحابہ کی شان کیا ہے؟ فرمایا میرے بعد کسی صحابی کو زبان تان دراز نہ کرنا. اللہ اللہ فی صحابی، اللہ 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 کو یاد کرو، اللہ کی یاد کرو، ڈرو اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، اپنے قلم کا نشانہ نہ بنانا، زبان کا نشانہ نہ بنانا، اپنے دل کی نفرتوں کا نشانہ نہ بنانا، بغض کا نشانہ نہ بنانا. اللہ رسول نے بیان فرمایا. اس حدیث کو کہاں لے جائیں گے؟ پھر فرمایا ان سے محبت مجھ سے محبت ہے. کہا میرے ان کے درمیان محبت مشترک ہے. جو ان سے محبت کیا وہ گویا مجھ سے محبت کیا، یا ان کی محبت میری محبت، میری محبت ان کی محبت. ان سے بغض مجھ سے بغض، مجھ سے بغض ان سے بغض، برابر قرار دیا. سب کے بارے میں کہا گیا، کسی ایک صحابی کا استثناء نہیں ہے. سب کے لیے نعمت عام ہے، سب کے لیے مرتبہ یکساں ہے، تمام صحابہ کے لیے. استثناء کی کوئی صورت تو ہے نہیں ہے. پھر کس کو اس لیے جائز ہے ان احادیث کو؟ اب ظاہر ہے اس طرح کی احادیث ہیں، اس طرح کی آیتیں ہیں، تمام صحابہ اس میں شامل ہیں. یا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ اجمعین. صحیح حدیث ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کرے، مذمت کرے، ان پر طنز کرے، کسی طرح ان کی توہین کرے، کسی ناحیے سے بھی ادنا درجے میں ان کی توہین کرے، تو اس پر اللہ کی لعنت و فرشتوں کی لعنت ہے. یہ جنرل حدیث ہے، کہاں لے جائیں گے اس کو؟ وہ احادیث جو خاص حالات کے لیے ہیں ان کو ان احادیث کی روشنی میں تطبیق دینا پڑے گا کہ وہ ان کا مفہوم کیا ہوگا، ان کا مفہوم کیا ہوگا. ان تمام احادیث آیات کو نظر انداز کر کے وہ آپ کسی ایک واقعے کی بنیاد پر کہے ہوئے ایک حدیث کو، اور اس میں بھی گنجائش ہوتی ہے کہ اس میں خاص لوگ ہیں کہ تمام لوگ ہیں کہ وہ جو جنہوں نے انوالو رہے اس خاص کام میں. جیسے کہا جاتا ہے حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں، تقتلک المیۃ الباغیہ فیۃ الباغیہ، سرکش گروہ تمہیں قتل کرے گا، باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا. تو باغی کیا ہوا؟ یہاں بغاوت تو وہ آدمی جس نے قتل کیا ہوا یا جتنے اس میں انوالو رہے وہ ہو سکتے ہیں، اور پورے حضرت معاویہ کو جتنے گروپ ہیں اس کو بھی شامل کر لینا، آپ کو عام کر دینا، یہ کس نے آپ کو اجازت دی؟ پھر یہ کہ جب وہ موجود ہے، یہ حدیث بھی موجود ہے، تو تطبیق کیا ہوگی؟ پھر یہ کہ اگر وہاں بھائی بھی دین کے خلاف ورزی ہوئی اور ایک صحابی کا قتل ہوا
تو جو قاتل ہے صرف اس کا شمار ہوگا. بھائی بس اوقات ایسا ہوا میدان جنگ میں، جیسے حضرت خالد سے اور حضرت اسامہ سے ایک آدمی نے میدان جنگ میں کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی مار دیا انہوں نے. تو میدان جنگ میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بس اوقات کمانڈر کا حکم نہیں ہوتا ہے، آدمی قتل کر دیتا ہے. تو اگر حضرت عمار بن یاسر کا قتل ہوا، بہت بڑا جرم ہوا، گناہ ہوا، اور جس نے کیا وہ باغی قرار پائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا تھا تعین کر کے جا کے مار دینا. تو اب تمام احادیث کو جو نصوص ہے جتنے ان نصوص کو سامنے رکھ کر کے تطبیق دینا پڑے گا. کہ تطبیق کی جو صورت نکالنی پڑے گی، یا تطبیق نہ بن پڑے تو یہ ہے کہ بھئی کہ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کیا، اللہ نے معاف کیا. ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے لم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جانتے بوجھتے وہ اپنی غلطیوں پہ اصرار کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو اپنا دھو دھا کے دنیا سے گناہ چلے گئے، ہم کیوں گٹھری ڈھو رہے ہیں بھائی؟ گناہوں کی گٹھری ہم کیوں دھونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور شیعوں کی طرح ہم اس کو کیوں روز بڑھاتے ہیں، روز دھوتے ہیں، روز بڑھاتے ہیں، روز دھوتے ہیں، روز بڑھاتے ہیں، روز 1400 سال یا 1400 سال ہو گئے دھو ہی رہے ہیں، یہ جمع ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ سب کیا تماشے ہیں؟ یہ منہج ہے اہل سنت کا کہ ہر چیز کو انہوں نے صحیح طور پر سمجھا ہو جانا. آج کے بالشتے مغرور جن کے دل و دماغ پر مہر لگ گئی ہے آج کے زمانے کی دنیا داری اور مکاری اور مکر و فریب اور کبر و غرور، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. بھئی تو اپنے دل و دماغ کا علاج کراؤ. صحابہ کی ذات پر کوئی اس سے اثر پڑنے والا نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے صحابہ کے سلسلے میں ان کے کئی حقوق ہیں. سب سے پہلا حق تو یہ ہے ان سے محبت کرنا ہے اور دل میں بغض نہیں رکھا ہے. جیسے یہ حدیث کہہ رہی ہے، یہ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دلوں میں بغض ان کے لیے نہیں رکھا جا سکتا. حرام ان کے لیے بغض رکھنا، حرام ان کے بارے میں زبان تان دراز کرنا. اگر ان سے بغض رکھا تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہوا. نمبر 1 یہ حق، پہلا حق ہوا یہ صحابہ کو ان سے محبت رکھنا ہے. دوسرے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے. الذین یقولون ربنا اغفر لنا، اسی سے طے ہوتا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کرو. دوسرا حق ہے یہ، اس لیے کہ انہوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں، آج انہی قربانیوں کے نتیجے میں دین محفوظ ہے، ایمان محفوظ ہے. آج ہمارے دین ایمان کے سلسلے میں جو ہم مسلمان ہیں، دین کو سمجھتے جانتے ہیں، ان کی حصہ داری ہے اس میں، اور قیامت تک ان کی حصہ داری رہے گی. تو ان کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو. یہ تو یاد رہا کہ وہ لڑائی ہو گئی، لیکن یہ بھول گئے کہ آج ہم جو مسلمان ہیں یا دنیا میں کہیں بھی مسلمان رہیں گے اور قیامت تک جو مسلمان رہیں گے تو ان کے جہود اور کوششوں کا حصہ ہمارے ایمان اسلام میں اور مسلم سماج معاشرے میں، مسلم فرد میں، شخصیت میں اور مسلم سماج میں ان کا حصہ داری ہے. اسلام پر باقی رہنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے، صحیح اسلام کو جاننے کے لیے. دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی کی کتابت کی جو ان کی حصہ داری ہے، اس کے اثرات قیامت تک نہیں رہیں گے. اب جو لوگ ان کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو انہوں نے جو کتابت کی وحی کو لکھا، تو اب برا بھلے کہنے کی بنیاد پر اب کتابت وحی کے بارے میں کیا مشکوک بنائیں گے؟ یہ کہیں گے کہ بھئی ان کی کتابت وحی غلط ہوگی. جب ان کی شخصیت کو نشانہ بنائیں گے تو ان کے سارے کارنامے نشانے پائے جائیں گے، نہیں آئیں گے. بھئی محدثین جو روایتوں کے بارے میں اہتمام کیا کہ صحت کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ جو راوی ہے اس کی شخصیت، اس کا ایمان، عقیدہ، اخلاق، کردار سب کو چیک کرتے تھے، نہیں کرتے تھے. اگر آپ صراحتاً شیعوں کی بدماشیوں کی بنیاد پر مجروح کر رہے ہیں حضرت معاویہ کو، تو ان کی کتابت وحی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نمبر 1. دوسرے کی کتابت وحی کا جو ان کا عمل ہے، جب تک قرآن کریم باقی ہے ان کی حصہ داری، ان کی نیکی کا ساری دنیا میں مسلمانوں پر اثر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو اس کو کیوں بھول جاتے ہو بھائی؟ اس کا کبھی احسان ادا کرو گے؟ آج یہ مخطوطہ تحقیق کرتے ہیں دیوانوں کی طرح، جن کی کوئی حیثیت نہیں، نہ علمی نہ عملی، لیکن اس کے لیے کتنا دیوانہ رہتے ہیں. اس کا سارا تعارف کرائیں گے، اس کی عظمت کبریائی بیان کریں گے، بڑائی بیان کریں گے. یہ تو کاتب وہی ہیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اگر ان کی شخصیت کو آپ متون کر رہے ہیں تو قرآن کی صحت کو متون بنائیں گے. مسئلہ یہی ہے کہ صحابہ کو جو یہ کہا گیا کہ عدول ہیں، سب سچے ہیں، اچھے ہیں، کس لیے کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اگر ان کو مشکوک بنا دو گے، ان کو متون بنا دو گے تو جہاد بھی متون ہو جائے گا، حدیث بھی متون ہو جائے گی، قرآن کریم بھی متون ہو جائے گا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی متون ہو جائے گی، آپ کی
सहाबियत की अजमत और जो तक़द्दुस है वो भी मतून हो जाएगा। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का जो तक़द्दुस और नूरानियत थी, मकाम, जगह, इलाका, हर जगह वो सारी चीज़ें मशकूक हो जाएंगी। लेकिन इस ऊंचे पैमाने पर सोच ही नहीं पाते हैं। तो मसला ये दूसरा हक सबक क्या है, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार मतलब क्या, उसको बख्शे, इंशाअल्लाह बख्शा है। जैसा कुछ की उनके बारे में रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जैसे कि कुरान करीम में जिक्र है कि उन्होंने अपना दुनिया में सारा बोझ काट के गए हैं, साफ सुथरे गए इंशाअल्लाह सब के सब। लेकिन इस्तिग़फ़ार मतलब दर्जा बुलंद होगा या कुछ भी का होगा, सब कट जाएगा उससे। अब बताइए वो सहाबा के ज़माने से आज तक क़यामत तक कितने लोग पैदा हुए मुसलमान, और अनगिनत सादत अहले सादत हैं जो सहाबा के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। ये मग़फ़िरत दुआएं मग़फ़िरत काम नहीं आएगी उनके लिए हैं? वो ऐसा लगता है जैसा न कोई मग़फ़िरत उनके ऊपर असर कर रही है, लोगों की दुआएं मग़फ़िरत, और ना उस ज़माने में तौबा की है, कुछ भी नहीं। जो गुनाह हो गया अगर उनसे कोई, तो बस वैसे बचा हुआ है, उसको झेलना पड़ेगा उनको। अजीब तमाशा है। इन क़यामत तक अब तक 1400 साल बीत गए, अनगिनत लोगों ने उन सहाबा के लिए दुआएं की हैं, उनकी दुआएं मक़फ़िरत काम नहीं आएगी है? या क़यामत तक बेशुमार अहले सादत अहले सुन्नत उनके लिए दुआएं करते रहते हैं, तो उनके लिए अगर गुनाह भी हो तो कटेगा नहीं है? यहाँ तो अल्लाह के यहाँ ये है तौबा का दरवाज़ा कि एक आदमी 100 आदमियों का कातिल बन जाता है और जज्बा नेक लेकर चलता है, अमल करने का मौका भी नहीं मिलता है, फिर भी माफ़ कर दिया जाता है। सहाबी के लिए आपने इतना दरवाज़ा तंग कर दिया है कि वो उनकी ज़िंदगी में अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए भी आप दरवाज़ा बंद किए हुए हैं, उन्होंने तौबा ही नहीं की होगी, अल्लाह ताला ने माफ़ भी नहीं किया होगा। या उनके बाद जिन्होंने दुआएं की हैं या बाद में करते रहें क़यामत, आप उन सबको बिल्कुल किनारे कर दिया, उनकी कोई हैसियत नहीं, उनकी है बस वो जो गुनाह किया है बस बाकी है, वो टस से मस नहीं होने वाला है। ये कौन सी समझ है दीन की है? ये कौन सी दीनदारी है? इसको क्या कहेंगे? यानी हज़रत मुआविया के मुकाबले में आज के ज़माने की तरह ये डेमोक्रेसी शैतानत वाली जो है उसकी तरह कैंप बनाए बैठे हुए हैं, मुखालिफत का हिज़्ब मुखालिफ बने बैठे हुए हैं हज़रत मुआविया के ख़िलाफ़। मलून किस्म के लोग हैं, ऐसे मलून हैं, इन पर अल्लाह और रसूल की और फरिश्तों की लानत होती है, लेकिन ये समझते ही नहीं है। तो जितने नुसूस हैं उनको सही ढंग से समझो, और अगर तारुज़ हो तो उनकी किस मकाम पर किस जगह उसकी क्या माना है उसको तय करो, उसकी हैसियत तय करो। उमूम को अपनी जगह पर रहने दो, और जो ख़ास वाक़ये के लिए जो अहादीस हैं, जो नुसूस हैं, उनको हैसियत तय करो और हर एक को अपना बनाओ, वरना ये सारी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो उनके हमारे ऊपर जो वाजिब है क़यामत तक तमाम मुसलमानों के ऊपर जो वाजिब है सहाबा के हुकूक में से, उसमें से नंबर 1 मोहब्बत करना, नंबर 2 उनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करना, नंबर 3 जिनके बारे में रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जन्नती हैं, गवाही देना को जन्नती हैं। और मजमूई एतबार से जितने नसूस है उससे पता चलता है कि जो ख़ास लोगों को अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल ने बेशारत दी जन्नत की, तो अपनी जगह ही हैं, लेकिन मुजमलन सबके बारे में तकरीबन ये नसूस तक कर देते हैं कि तमाम सहाबा जन्नती हैं। नाम के साथ ताइन है, वो तो क्लियर है, तो उनके बारे में गवाही तो देना है नाम के साथ कि हाँ वो जन्नती हैं। जैसे रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत अली अशरे मुबश्शरा है, बहुत से सहाबा के बारे में नाम लेकर बताया जन्नती हो। फिर ये कि कबीलों के मुतालिक बताया जन्नती हैं। फिर उसके बाद जनरल में सहाबा के बारे में नसूस ही तय होता है सारे सहाबा जन्नती हैं। तो आप जन्नत की गवाही दीजिए। और क्यों नहीं जन्नती हो सकते हैं? जब उनके सहाबियत का इतना बड़ा दर्जा है, उतनी उनकी इतनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, गलतियों पर इसरार नहीं तौबा भी कर रहे हैं, और क़यामत तक उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत हो रही है, तो क्यों नहीं उनकी माफ़ी हो सकती है? इसमें कोई शक होना चाहिए? बताइए, 1400 साल बीत गए, अगर कितने अरब मुसलमान हो गए होंगे? उसमें अक्सरियत तो सहाबा के लिए दुआ की नहीं की। जब अक्सरियत ने दुआ की है तो इतने लोगों की दुआएं, अरबों लोगों की दुआएं उनके लिए अल्लाह के यहाँ बख्शिश के ज़रिए नहीं बन सकती हैं? पता नहीं किस मिट्टी के माधो किस्म के लोग हैं, खोपड़ी में दिमाग गंदा भरा हुआ है, ये सब हक़ाइक़ नहीं समझ पा रहे हैं। तो तीसरा हमारे ऊपर हक है, बनता है, वाजिब हमारे ऊपर सहाबा के सिलसिले में गवाही दें, फर्दन गवाही दी हैं जिनके बारे में रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है कोई जन्नती हैं, और ग्रुप के बारे में जो बताया है उसकी गवाही दें जन्नती हैं, और मुजमलन जो बताया है तमाम सहाबा के बारे में नसूस है जन्नती हैं, गवाही दें हम, हमारे ऊपर वाजिब है।
ना कि बैठ करके दफ्तर जराइम खाना खोल के बैठे और मुजरिम करा दें। हजरत मुआविया मुजरिम थे, हजरत अमर बिन आस मुजरिम थे, हजरत अबू मूसा अशरी मुजरिम थे, फलां मुजरिम थे, फलां मुजरिम थे। ये कैसे लोग हैं? गंदे लोग हैं, इनके दिलो दिमाग गंदे हैं, इनका फिक्र गंदा है, इनकी तबीयत गंदी है, खुद से बातिन के शिकार हो गए हैं। ये भोंदू हो गए हैं जो अपने को कितना काबिल समझे लेकिन नसूस का मसला समझते ही नहीं है। कभी इन्होंने गौर ही नहीं किया कुरान करीम में और तमाम नसूस को सामने रख करके फैसला ही नहीं कर पाए कि हर एक का मकसद क्या है, हर एक का हासिल क्या है और तमाम के दरमियान अगर तनाकुज़ हो तो कैसे दूर किया जाए। और न इन्होंने सहाबा की इत्तेहाद की हैसियत को समझा, न उनकी मग़फ़िरत को समझा, न तमाम दूसरे सहाबा के लिए मग़फ़िरत कर दी, उनका जो मकाम व दर्जा दे रहे हैं। और फिर ये कितना किए बैठे हैं कि अल्लाह ताला सबकी दुआएं बेकार कर देगा मग़फ़िरत की और सुनेगा ही नहीं। कितने तमाशे कर रहे हैं। फिर ये कि ये खराबी उन्हें महसूस करते हैं कि भाई अगर आप तान कर रहे हैं तो तमाम जिहाद पर तान हो जाएगा, तमाम दावत व तबलीग उन्होंने की उस पर वो मतून हो जाएंगे, किताबतें वही मतून हो जाएगी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का तक़द्दुस और उसकी जो हैसियत है, आज़मत है, आज़मत साहबियत है, वो सब मतून हो जाएंगे। ये सब समझते ही नहीं है। अजीब किस्म के लोग हैं सब। गहराई गिराई से कुरान सुन्नत को और पढ़ें समझें तो सारी चीज़ें समझ में आए। चौथा हक हमारे ऊपर बनता है साहबा के लिए, वाजिब है तरज़ी, या उनके लिए कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। इसलिए कुरान करीम में बार बार कई जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया है। और फिर ये कि सूरह तौबा आखिरी दौर की सूरतों में से है, उस तक में जितने सहाबा थे उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ, उनके लिए मग़फ़िरत के ऐलान, उनके लिए जन्नत की बशारत के ऐलान, उनके लिए अल्लाह ताला की रज़ा के ऐलान, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप कहाँ किसको अच्छा ये कि मान लिया ये हज़रत मुआविया ही तान करते हैं तो हज़रत अली से हज़रत तलहा हज़रत ज़ुबैर भी तो मुखालिफ थे, वो तो लोग बदरी थे। तो उनके बारे में क्या कहोगे? उनके बारे में भी कहोगे ना कि क्यों मुखालिफत की? उनके लिए भी कैंप लगाओ मुखालिफत का, अपोजिशन का। तो हज़रत मुआविया के बारे में बड़ा जल्दी नाम ले लेते हैं तो उनके बारे में भी। अच्छा एक तरीका ये भी चला आ रहा है, हालांकि बिल्कुल गलत है, कि ये कोई आदमी जब ये गुलू करेगा हज़रत मुआविया के बारे में और दूसरे सहाबा के बारे में तो उधर कुरेदा जाता है तारीख के हवालों से कि हज़रत हसन के बारे में, हज़रत हुसैन के बारे में, हज़रत अली के बारे में ये रवायतें हैं, शियो ही नहीं रवायतें गढ़ी हुई हैं। तो फिर वो सूरत हाल बिगड़ जाती है कि आप कहाँ करेंगे, किसको करेंगे? उधर भी इस तरह रवायतें, इधर भी रवायतें हैं। तो इन रवायतों के चक्कर में क्यों पड़ना है? नुसूस कुरान हदीस को देखिए। आप इस तरह करेंगे तो इधर इस तरह होगा। और इस तरह किया जाता है कि भाई इतना बढ़ा रहे हो वहाँ अहले बैत का मसला कि लगता है जैसे तमाम सहाबा से ज़्यादा हैसियत है और अल इतलाक उनको सजदा मानना चाहिए। क्यों भाई? जब हज़रत अबू बकर से बड़ा तो कोई नहीं है, उसके बाद हज़रत उमर से बड़ा तो कोई नहीं है अहले बैत में से, उसके बाद हज़रत उस्मान से बड़ा तो कोई नहीं है अहले बैत में से। तो उनका जो बड़े हैं उनकी हैसियत तो तस्लीम करनी पड़ेगी ना आपको। फिर ये कि अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा बड़ा तो मुहाजिरीन अंसार को करार दिया गया है। अहले बैत का खास जो मकाम मनसब व दर्जा है वो अपनी जगह है। तो इनमें टकराव क्यों पैदा कर रहे हो? जिसका जितना तयन होता है दर्जे का, उस दर्जे को मतयन करो। गुलू पसंदी क्यों होती है? ये 10वां सबब जो होता है तमाशा, गुलू पसंदी होती है। और गुलू पसंदी वो लोग ज़्यादा करते हैं जो हसब नसब की बात करते हैं। ये बड़े सगीर हिंदुस्तान में ना, ये जितने आपको अहले बैत कहते हैं ना और चीखते चिल्लाते हैं और हमेशा यही रवैया अख्तियार करेंगे कि वो तान करेंगे सहाबा को और तफरीक करेंगे सहाबा में और महफिल सजाएंगे अपोजिशन का। ये अक्सर अहले जो अपने आप को सैयद कहते हैं ना, अगर पूछा जाए कि नसब साबित कर दो, नसब साबित नहीं कर पाएंगे। ये जितने बड़ा नाम आता है ना सैयद के नाम से, इनका नसब नामे एक सुर्खपोश है, वहाँ जाकर सबका इन मुनक़ते हो जाता है नसब नामा। इसलिए मैं कहता हूँ ये अक्सर धोबी सैयद हैं। धोबी सैयद जानते हो? ये कहानी है धोबी सैयद की। कहा एक आदमी, एक पुराने अपने आप को सैयद कहते थे, तो उनके पड़ोस में एक धोबी था। तो वो कपड़ा धुलते धुलते मालदार हो गया, तो वो भी अपने को सैयद कहने लगा। तो जो अपने को पुराने सैयद होने के दावादार थे मुकदमा दायर कर दिया। तो अब कोर्ट कचहरी में तो जो जानदार किस्म का गवाह हो और पैसे वाले हों तो उनकी जीत होती है ना आज के ज़माने में। ये कहानी होती है। तो धोबी का जो एक गवाह था बड़ा जीदार था, तो पूछा जज ने, तुम उनके बारे में भाई कौन असली सैयद है, कौन है कौन नहीं है? तो उसने कहा ये जो पुराने सैयद हैं वो कब से सैयद बने हम नहीं जानते हैं, लेकिन धोबी को सैयद बनते हमने अपनी आंखों से देखा है। तो फिर डिग्री हो गई। तो अक्सर धोबी सैयद हैं, बनते हैं सैयद, सैयद है नहीं।
اب इस तरह के लोग अगर गरूर में आए हम सैयद हैं, तो उनसे किस चीज़ की उम्मीद रखी जाएगी। अच्छा, कुछ लोग अगर बने नहीं लेकिन नेचर उनकी धोबी सैयद की होती है। भाई अगर आले बैत हैं तो उनके हुकूक हैं, सदका खैरात न खाओ, और सदका खैरात करोड़ों बटोरे मौजूद हैं, खा जी रहे हैं, और फिर भी तहज्जुद का उनका चर्चा हो रहा है कि बड़ा नेक है। कैसे नेक है? सैयद हो तो हराम है सदका खैरात बटोरना, क्यों बटोरते हो? और फिर उसने कोठियां बनाना और गाड़ियों में सैर करना, हवाई जहाज से उड़ना, क्यों सदका खैरात का इस्तेमाल करो भाई? सैयद हो तो सैयद बन के रहो, और अगर नहीं बन के रहो तो इसमें धोबी सैयद हो, यानी असलन ना हो, मान लिया थोड़ी देर के लिए तो असली सैयद हो, लेकिन नेचर धोबी सैयद का है तुम्हारा, इसलिए कि सब जायज बनाए हुए हो। एक तो अपोजिशन बनाते हो, 14वीं-15वीं सदी में हजरत मुआविया की अपोजिशन में खेमा लगा रहे हो। सबसे बड़ी बदबख्ती, नहुसत और बदतमीजी और हराम काम यही है कि आज के ज़माने में खेमा लगाओ, जबकि खुद जो खेमा लगाने वाले हैं अगर सबूत मांगा जाए तो हर काम उल्टे। एक साहब हैं 40 साल से नदवा में भाड़ झोंकते रहे और कटौली में के लिए अपना भूना भूनते रहे। अब क्या कहेंगे इनको? उल्टी दीदी हरकतें। वहाँ तो एतराज़ हजरत मुआविया ने हुकूमत क्यों नहीं तस्लीम किया हजरत अली की, और अपना ये है नदवा में कि जरिए अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो पहले अपना तो फैसला कर लो भाई, पहले अपनी हैसियत दुरुस्त कर लो, उसके बाद बात करो। तो खुद उससे ज्यादा बिगड़े हुए, यानी जिस चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं वो छोटी हैसियत तुम्हारी, सिर्फ भीख मंगाई, उस भीख मंगाई पर इतना गुरु क्यों ब्लेम कर रहे हो? पहले आपको तो साफ सुथरा कर लो भाई। अगर कोई इनसे मांगे, कहे 40 साल तक भीख मांगते रहे, सदका खैरात हिसाब दो ना। कौमी अमानत हुई, कहाँ गई वो? अपनी बाप का इजाजत बना रखा है, ठेकेदारी बना रखी है, और उसी पर मजे कर रहे हो, उड़ रहे हो, घूम रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर टहल रहे हो, अय्याशी कर रहे हो, तो इजाजत है तुम्हारे लिए। और फिर ये झूठ बोल बोल करके जिंदगी भर झूठ बोलना इन लोगों का मुकद्दर हो गया। जैसे लोग हैं जो जिंदगी में जिनका झूठ बोलना और झूठ की तजारत करना और झूठी बुनियाद पर अपने आप को बढ़ाना और झूठी का सारी सरगर्मियां हो, वो आए हजरत मुआविया पर तन तोड़ने के लिए। मालूम है ऐसे लोग, अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत है ऐसे लोगों पर। साहबा को क्या समझ रखा इन्होंने? एक साहबी आज की सारी दुनिया के जितने हैं सारी चीजों पर भारी है वो साहबी। उसके बारे में बात करते हैं, अदना दर्जे का साहबी। जब एक गामदी एक औरत को जो एक उनसे गुनाह सदद हो गया, उसकी बुनियाद पर उनका रिकॉर्ड हुआ हदीस में, उनके बारे में रसूल पाक ने फरमाया कि इतनी अजीम तौबा की है कि सबके लिए मदीना की सारी बस्ती के लिए काफी हो जाए, या 70 साहबा के लिए काफी हो जाएगा। तो और दूसरे साहबा के बारे में क्या ये ख्याल बना रखा है कि आज के जमाने में जिस तरह लोगों का हराम खा कर किसी को तौबा की तौफीक नहीं मिल पाती है। आदमी जब हराम खाने का आदी बन जाता है तो बड़े से बड़े गुनाह करता है, लेकिन तौबा की तौफीक नहीं मिलती है। तो आज के ज़माने की तरह समझ रखा है कि उनको तौबा की तौफीक नहीं हुई। अल्लाह ने फरमाया कि वो कोई मामूली गलती हो जाए तो उनको चैन नहीं आता है बगैर तौबा किए हुए। तो ये सारी शहादतें, सारे सूरज की तरह क्लियर उनकी पोजीशन है, इसके बावजूद भी आए हैं थूक करके चांद पर थूक रहे हैं और सूरज पर थूकने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोग। तो इनकी मिसाल ऐसे छोड़ भैया जो उछल कूद रहे हैं ना, मेढक को टर टर कर रहे हैं, ये इनकी हैसियत यही है कि सूरज पे थूकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये टाउन टॉक बना हुआ है, ऐसे उठाई गिरे को लोग अहमियत देते हैं। ऐसे आदमियों का इल्म, ऐसे आदमियों की सारी सलाहियतें वो वाले जान होती हैं उनके लिए। जो आदमी मगरूर हो जाए, हर कदम पर गुरूर का तमाशा दिखाता रहे, उसका इल्म उसके लिए वो वाले जान हो जाता है, उसकी सारी सरगर्मियां उसके लिए बोझ हो जाया करती हैं। तो ये चौथा सब मैं कह रहा था कि हक हमारे ऊपर, तमाम मुसलमानों के ऊपर है, सहाबा के मुतालिक उनको रजी अल्लाह अन्हुम का है। पांचवा हक उनके ऊपर यह है, हमारे ऊपर उनका हक यह है तहस्सुन। तहस्सुन मतलब यह है कि उनकी जात को महफूज होनी चाहिए, इतराज नहीं करो। ये जो हदीस पढ़ी ना मैंने, अल्लाह अल्लाह फी साहबी ला तत्तखिज़ू गरज़न मिन बादी, कि उनको निशाना न बनाया। उनका मकाम इतना बड़ा है कि हर सहाबी की जात को तहस्सुन मिलना चाहिए उम्मत की तरफ से, कि उनकी जात पर उंगली भी नहीं उठा सकता है, उठाने की जुर्रत न करे। ये पांचवा हक हमारे बनता है। तहस्सुन इन्हीं आयत और हदीस की रोशनी में तय होता है कि तमाम सहाबा की जात को तहस्सुन मिलना चाहिए, कि किसी उम्मती को उनकी तरफ उंगली भी न उठाए, उनकी तरफ सोचे भी नहीं गलत।
ان کا مقام اتر جائے. آج کے زمانے میں کوئی پریزیڈنٹ بن جاتا ہے, کوئی گورنر بن جاتا ہے, اس کو تحسن مل جاتا ہے کہ چاہے مجرم ہو پھر بھی مقدمہ نہیں چل سکتا ہے. یہ یہاں کا قانون بنا ہوا ہے, اور جمہوریت کا ان چوروں چنڈالوں کے لیے انہوں نے اتنی ساری قربانیاں دیں, اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی اور غلطی کے لیے وہ اعتراف کرنے کے لیے ہر دم تیار موجود, اور تمام وہ بھی توبہ کر رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں, اور تمام امت کے لوگ قیامت تک ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے, پھر بھی ان کے لیے معافی نہیں ہے. کیسے بلید ذہن کے لوگ ہیں, کیسے غلیظ ذہن کے لوگ ہیں ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو پانچواں حق ہے تحسن ذات, کہ تمام صحابہ کو تحسن ملنا چاہیے. کسی بھی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں ہے, حرام ہے ان کی بارے میں زبان کھولے. انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کے حوالے ہے, اور یہ کہ بالکل یہ سمجھو یقین کے درجے میں ہے کہ ان کی ساری دنیا سے گئے, ان کی مغفرت ہوئی, اور وہ تمام چیزوں سے جو ان سے کوئی خطا ہو گئی جانے انجانے سب کی معافی تلافی ہو چکی. خود ان کی ذات کی اپنے توبہ استغفار کی بنیاد پر, اور تمام مسلمانوں کی توبہ ان کے لیے استغفار کرنے کی بنیاد پر, قیامت تک جو ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. تو انشاءاللہ ان احادیث سے ان کا مفہوم جو ہوتا ہے اسے طے ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سب صاف ستھرے جائیں گے, سب جنتی ہوں گے انشاءاللہ. تو ایسی جو صورتحال ہے یہ اقتضاء النص اور اشارت النص اور عبارت النص سب سے طے ہوتا ہے, یہ کہ ان کی حیثیت کلیئر ہے, کسی کو مجال نہیں ان کے بارے میں گفتگو کرے. اور جو مجرم ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, کہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, اور تمام انسانوں کی مل کر سب کی لعنت. کتنے انسان ہیں, کتنے کیا نام ہے فرشتے ہیں, کوئی گن سکتا ہے؟ سب لعنت بھیجتے ہیں, اور تمام انسان, یعنی صرف مسلمان نہیں کہا گیا ہے. یعنی جو صورتحال ہے حقیقت اس کے برعکس ہیں, تو نیچرلی ہر انسان ایسی چیز کو مذمت کرے گا, چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو. یہ مطلب ہوا والناس اجمعین. تو یہ کافروں کی بھی مذمت کے مستحق ہیں ایسے لوگ جو صحابہ پر زبانی تان دراز کریں اس حدیث کی روشنی میں کہ وہ ایسی حقیقت ہیں صحابہ, اور ایسی سچائی ہیں کہ اس کو ایک کافر بھی انکار نہیں کر سکتا ہے, اور ایک کافر کی بشریت, اس کی صحیح فطرت بھی ایسے آدمی کو مذمت کر سکتی ہے. تو انسانی فطرت بھی ان کو مذمت کرتی ہے, چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو. اور مسلمان اپنے ایمان دین کی بنیاد پر بھی مذمت کرتا ہے ایسے لوگوں کی, اور یہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں. تو یہ تو ہوا. چھٹا حق ہے ان کا صحابی کا ہمارے اوپر, تمام امت کے اوپر, تتبع, کہ جو راستہ ان کا تھا دین پر کو سمجھنے کا اور دین کو پر عمل کرنے کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ ہم اپنائیں. فرمایا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا علیہ وصحابی, کہ جو میرا طریقہ میرے صحابہ کا طریقہ ہے, تتبع کرو. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہاں صحابی کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو گئی, غلطی, تو اس بات کہا سبیل المومنین. اس زمانے میں کون تھا سبیل مومنین؟ صحابہ تھے نا. تو کہا رسول کی مخالفت اور صحابہ کی مخالفت دونوں جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. تو 6 حق ہے صحابہ کا. پہلا حق یہ ہے ان سے محبت کریں, واجب ہے ہمارے تمام دنیا کے مسلمانوں پر قیامت تک کے لیے ان سے محبت کرنا, ان کے لیے استغفار کرنا, اور ان کے لیے ترضی کے لفظ اختیار کرنا, اور ان کے لیے گواہی دینا ان کے جنتی ہونے کی, اور ان کے لیے تحسن کا عقیدہ رکھنا, اور ان کے راستے کو اپنانا. 6 حقوق ہیں صحابہ کے تمام ہر مسلمان کے اوپر قیامت تک کے لیے. ان 6 حقوق کے ہوتے ہوئے گنجائش ہے کہ زبان کھولو, محبت سے زبان کھولو گے, استغفار کی بات ہے تو زبان کھولو گے, بدزبانی کی یہی کہ دل میں نفرت رکھو گے, اور یہ کہ گواہی دینی ہے جنتی ہیں زبان کھولو گے, بدتمیزی کی یہ کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہنا ہے تو زبان کھولو گے بدتمیزی کی, یا ان کے تحسن ان کی ذات کا ہونا چاہیے زبان کھولو گے, ان کا تتبع کرنا راستے کا زبان کھولو گے. 6 حقوق ہے صحابہ کے ہمارے اوپر, اس کو یاد رکھنا چاہیے. محبت کا, استغفار کا, شہادت کا, ترضی کا, تحسن کا, تتبع کا. ترضی, تحسن, تتبع, استغفار, محبت, شہادت, 6 حقوق ہمارے اوپر ہیں. ان حقوق کو اگر ادا کریں صحیح شعور اور صحیح سمجھ دل کے ساتھ تو ہر صحابی ہمارے آنکھوں کا تارا ہے.
اللہ تعالیٰ